हाय स्टूडेंट्स, परीक्षा पे चर्चा 22 स्टिल गोइंग ऑन। 11 बजे से मैं लाइव सेशन पे लगातार उस प्रोग्राम में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था और मैं अपने खुद के बच्चों के साथ अपने इंस्टीट्यूशन में बैठ के इस तरह ऑल अक्रॉस इंडिया हर जगह से बच्चे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ। और मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें शेयर की और उनके प्रोग्राम Question अभी भी चल comes रहा है, शायद आप from उसे Mysuru अटेंड in करें। और अब मैं आगे Karnataka, ना बढ़ते renowned हुए for its उनके heritage उन्होंने जो भी बताया destinations इस and वीडियो में national शेयर parks. करूँगा। Tarun देखते हैं। MB, who is the class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11 at Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is, Sir, how can a student focus while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without distraction. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir. Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahib. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Student in Chrysler School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M, a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister Sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leyland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahib, Kirtana, and Chandra Chudeshwaran, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, 17 वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है।
तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन बनने के लिए मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकार करूंगा। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने का मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को मैं, आप मान लीजिए यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पर बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो शिक्षा है आपकी समझ अपना प्रश्न करना चाहती है, दूसरी समझ आती है, फिर अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने में नए अवसर कैसे प्रदान करेंगे? धन्यवाद मान्यवर। पूर्व के स्कॉटलैंड मेघालय के ईस्ट खाती की कक्षा नवी की छात्रा शीला बैठक आपसे इसी विषय पर प्रश्न कर रही है। जितना आईपैड जैसे दूसरे में आनंद आता है, मोबाइल फोन जैसे दूसरे में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर दूसरे का होता है। हमें कुछ बात ऐसे निकालनी कि जब आप ऑनलाइन के लिए होंगे, ऑफलाइन होंगे, इन ऑनलाइन होंगे, जितना आनंद आएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर चीजों को करेंगे मुझे लगता है कि सारे संकट आपके लिए घटनाएं बता